Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will fine. Dear students, as you know, we are discussing about stoichiometry, means calculation of chemical reactions. In previous lectures, we have studied and discussed about mole, molar mass, Avogadro's number, stoichiometric calculation, as well as the conversion factors. Conversion factor is just the conversion of the amount or conversion of the figure from one unit to another unit, like conversion of mole into molar mass, conversion of molar mass into volume, or volume into number of molecules or particles, etc. And then we discussed about the limiting reactant and excess reactant. The reactant that responsible to gives least number of product will be the limiting reactant, and the reactant that remain unused and remain left after the completion of a chemical reaction will be the excess reaction. Now we will discuss about the theoretical and actual yield. What is theoretical yield and what is actual yield? As the title shows, theoretical yield theoretical means the amount of product that can be produced from a given amount of reactant. The amount of reactant that is given in the question, that is given in the chemical reaction, this is the estimation amount, that about how much volume or how much amount of product can be produced by this amount of reactant that is given. This is theoretical yield. This is the estimation or calculation that we calculate about the given amount of the reactant. And actual yield, that is actually produced after experimentation, after perform experiment, the what amount of product is produced. So theoretical yield is the maximum amount of product that can be produced from a given amount of reactant. A chemical reaction rarely produces the theoretical yield of product. A chemist determines the actual yield of reaction through the careful experiment in which the mass of product is measured. Theoretical yield वो जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के में जितना अमाउंट गिवन है उससे कितना अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का, इसे हम रेयरली प्रोड्यूस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो हमारी एस्टिमेशन होती है मोस्टली, बल्कि अक्सर हमारे जो एक्चुअल यील्ड जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा अमाउंट हमारी कैलकुलेशन या हमारी एस्टिमेशन से कम आता है. उसके रीजंस हम डिस्कस करेंगे. अब केमिस्ट जब डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल यील्ड, तो वो एक्चुअल यील्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वही केमिकल रिएक्शन जो हमने कैलकुलेट की, एस्टिमेशन की, उसे परफॉर्म करते हैं. एंड आफ्टर परफॉर्म जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है उस प्रोडक्ट को मेजर करते हैं तो उसका जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट होता है एक्चुअल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड एस्टिमेशन है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेटेड वैल्यू लेंगे. एक्चुअल यील्ड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें अमाउंट मिला, वो कहलाता है एक्चुअल यील्ड. Amount of product produced when the chemical reaction is carried out in an experiment. Percent yield is the measurement of the efficiency of the percent yield. एक्चुअल यील्ड वो होती है जो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिले. इसके बाद एक और होती है परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड, जो हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड के रेशो से. एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो हमें एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन शो करती है कि कितना एफिशिएंट ये रिएक्टेंट था, कितनी एफिशिएंसी रही, कितने परसेंट हमें प्रोडक्ट मिल गई हमारी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग. ये इसका फॉर्मूला गिवन है. अगेन वही बात जो हमने भी डिस्कस की है. द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. इसके ज़रिए हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी है केमिकल रिएक्शन की, जो एक्सपेरिमेंट की एफिशिएंसी है, वो कितनी है. नाउ theoretical yield versus actual yield. Suppose the theoretical yield of an experiment was calculated to be 19.5 gram and the experiment was performed but only 12.3 gram of product were recovered. Determine the percentage yield.
जो हमारी कैलकुलेशन थी एक्सपेरिमेंट की, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट गिवन था उससे हमने जो कैलकुलेशन बनाई थी, हमारा एस्टिमेशन था, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू गेट द प्रोडक्ट 19.5 grams, बट व्हेन वी डन द एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, वी ओनली गेट द 12.3 gram ऑफ प्रोडक्ट। एस्टिमेशन 9.5 grams थी, जबकि प्रोडक्ट हमें मिली 12.3 ग्राम, अमाउंट हमें लेस मिला। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कितनी है, 12.3 ग्राम डिवाइड बाय 19.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 63.1% यील्ड। मीन्स इसकी एफिशिएंसी केमिकल रिएक्शन की, इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है 63.1%। नाउ अगेन कैलकुलेटिंग reactant given percentage yield and actual yield. If the percentage yield of reaction below is 78%, अब यहाँ पे हमें फार्मूला वही यूज़ करना है, बट यहाँ हमें परसेंटेज गिवन है, दैट इज़ 78%. हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 512 ग्राम ऑफ PCl3? PCl3 हम 512 ग्राम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कितना अमाउंट क्लोरीन का नीडेड है, जबकि परसेंटेज यील्ड 78% है। हम फार्मूला पुट करेंगे, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना अमाउंट हमने फाइंड करना है, जबकि प्रोड्यूस हमने कितना करना है, 512 ग्राम, ये हो गई हमारी एक्चुअल यील्ड। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ चला जाएगा और परसेंटेज यील्ड बॉटम में आ जाएगा। थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इनटू 100। तो ये हो जाएगा 512 ग्राम and divided by 78% into 100 is equals to 656 gram of PCl3. Sorry, this is not PCl3, this is amount of chlorine gas, that is 556 gram.